अमित शाह के बिल से डरे राहुल गांधी, दिया चौंकाने वाला बयान। राहुल गांधी बोले, अगर राजा को किसी का चेहरा पसंद नहीं आया तो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता को हटा देंगे। Put a case and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. Also, let's not forget why we are electing a new vice president. राहुल गांधी बोले, हम मध्यकाल की ओर लौट रहे हैं, अब राजा की मर्जी से किसी को भी हटा देंगे। You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED. लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में पेश किए गए 3 विधेयकों का कड़ा विरोध किया है। इन विधेयकों में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं और वो लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। राहुल गांधी ने इस कदम को देश को मध्यकालीन दौर की ओर ले जाने वाला बताया। राहुल गांधी ने कहा कि हम मध्यकाल की ओर लौट रहे हैं, जब राजा अपनी मर्जी से किसी को भी हटा सकता था। अगर राजा को किसी का चेहरा पसंद नहीं आएगा तो ईडी से गिरफ्तार कराकर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता को 30 दिन में बाहर कर दिया जाएगा। क्या कुछ कह रही हैं राहुल गांधी, और सुनिए। There is a lot of action going on. You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. Also, let's not forget why we are electing a new vice president. Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? He's gone. So it's become like, like those Agatha Christie books. The day the vice president resigned, I think Venugopal ji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it. Some of you might not know it. But there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Now, he is carrying the Constitution of India with him everywhere. Now, when we are making a judgment about political people, there are 2 things. Number 1 is, ideologically, is he on the correct path? And number 2 is he a astute person? Is he a sharp person? So I must have looked for 1 second. And after about 5 minutes, he said to me, Rahul, I have been carrying the Constitution in my pocket for 52 years. And then I said, but why are you carrying this for 52 years? We have only started carrying it once the BJP has started attacking us, attacking the Constitution. It has become very important to us. We carry it with us. We defend it. It defends us. Why do you carry it? And he said, because, in any conversation that you have, legal conversation, the Constitution has the final answer. And so, he's an astute person, sharp person, observant person, and he's ideologically aligned person.
तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना है, वो साफ तौर पर कह रही है कि राजा की मर्जी से किसी को भी हटाने का काम किया जाएगा, चुनी हुई सरकार को भी गिरा दिया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश शासन संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पेश किया। सरकार के इस कदम का विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने विधेयकों की पत्री तक फाड़ दी और सदन के भीतर जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि संविधान पर हमला है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान पर हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो इसे बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने काले रंग की टी-शर्ट पहनकर विरोध भी दर्ज कराया। विपक्षी दलों ने इस विधेयक को कठोर तानाशाही वाला कानून बताया है। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार इसका इस्तेमाल विपक्षी शासित राज्यों को अस्थिर करने के लिए करेगी, ताकि मनमाने ढंग से मंत्री और मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी कर उसे पद से हटाया जा सके। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और सुनिए। He's gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. There's also wonderful spark, which is, I can see, there is a fire that is starting in Bihar. And you will see I'm inviting all the senior leaders to come and see this fire because it is catching fire. मतलब वो आग फैल रही है, उसको रोका नहीं जा सकता। वो सारों के मुंह में है, सारे लोग वहां पे बच्चे, मतलब 4 साल के बच्चे वोट चोर चल रहा है, क्योंकि ये जो देश है इसकी आत्मा बात बहुत जल्दी समझ जाती है। एंड ये अब आग लगनी शुरू हो गई। इनकी थिंकिंग थी कि महाराष्ट्र चोरी कर लिया, हरियाणा चोरी कर लिया, बिहार चोरी कर लेंगे, बंगाल चोरी कर लेंगे, असम चोरी कर लेंगे, इनकी ये थिंकिंग थी। मगर अब लग रहा है कि बिहार से आग फैलेगी। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, आप आइए देखिए बिहार में कैसी मतलब पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी स्टेट है। अखिलेश जी यहां बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वहां पे मतलब तूफान आ रहा है, शुरू हो गया है। तो हमारे लिए भी अच्छा टाइम है, क्योंकि वी हैव टू एक्सेप्ट that it is the duty of the opposition now and duty of all the senior leaders sitting here, Sharad Pawar ji, Kharge ji, Yadav ji, to provide a alternative vision, alternative idea of India than the one they have. This is a big responsibility. It is not the same responsibility we had 10 years ago or 15 years ago, because the system was in place. Now the system's gone. तो जैसे कि आपने सुना, साफ तौर पर राहुल गांधी इन विधेयकों का, इस बिल का जो है विरोध करते नजर आए। बता दें आपको कि जब इस बिल को लोकसभा में लाया गया था, उस दौरान भी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बिल का विरोध किया था और कहा था कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। साथ ही कहा था कि जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे तब वे गिरफ्तार हुए थे, क्या तब उन्होंने नैतिकता निभाई थी? जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने केसी वेणुगोपाल को भी मुंहतोड़ जवाब दिया था। जरा सुनिए किस तरीके से लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह गरजे थे और केसी वेणुगोपाल को यह कहा था कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था और जब तक कोर्ट से मुझे क्लीन चिट नहीं मिला था, मैंने किसी भी पद को स्वीकार नहीं किया था। सुनिए किस तरीके से अमित शाह ने लगाई थी लताड़। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है, morality of that point of time. गृह मंत्री जी, आप मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो, गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है।
तो जैसा कि आपने यहाँ पर भी उनका बयान देखा, उन्होंने देखा किस तरीके से केसी वेणुगोपाल की उन्होंने क्लास लगाई थी। अब आपको बता देते हैं कि इस विधेयक को लेकर इतनी ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है। सरकार के जो 3 नए भ्रष्टाचार रोधी विधेयक, इनके मुताबिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार होते हैं जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा है और वो लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो 31वें दिन वे स्वतः पद से हटा दिए जाएंगे या फिर उन्हें इससे पहले ही अपने पद को छोड़ देना होगा। हालांकि रिहा होने के बाद उन्हें दोबारा पद पर नियुक्त किया जा सकता है। सरकार का यह कदम उन विवादों की पृष्ठभूमि में आया है जब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी जेल में रहते हुए भी पद पर बने रहे थे और उस वक्त आम जनता को भी बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जेल में है तो कई सारे आप कह सकते हैं कि आदेश पारित करने में परेशानी होती है, कुछ भी एग्जीक्यूट करने में परेशानी होती है, क्योंकि पूरी बागडोर जो है जेल में बंद एक नेता के हाथ में होती है। अब ऐसे में वहाँ पर प्रोटोकॉल्स है, जेल के अलग प्रोटोकॉल्स है, सीएम के काम के अलग प्रोटोकॉल्स है, सिग्नेचर के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। तमाम अलग अलग तरीके से 2 अलग दुनिया ऑपरेट करती है, अगर जेल की दुनिया की बात करें और नॉर्मल बाहर एक सीएम की दुनिया की बात करें, और ये दोनों जो है वो जनता के मुताबिक है। और यही कारण है कि जेल में रहने के बावजूद जब कोई अपना पद नहीं छोड़ता है तो आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आम जनता को भी जेल में बंद उस नेता, उस मंत्री की वजह से उनके राज्य के लोगों को, उनके आप कह सकते हैं एरिया के लोगों को जो है लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि काम भी उतने लंबे समय तक पेंडिंग रहता है। और ये कह दिया जाता है राजनीति के तहत कि वो तो जेल में है तो काम कैसे करेंगे, काम को रोकने के लिए जेल में डाल रखा है। अरविंद केजरीवाल एक लाइव एग्जाम्पल है, उनके वक्त आपने देखा था। अब ऐसे लाइन में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ कई सारे भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, कई गंभीर मामले हैं। लालू प्रसाद यादव का ही हाल देख लीजिए आप। और ऐसे में इन नेताओं के जेल जाने पर भी पद नहीं छोड़ने को लेकर विवाद है और इसे लेकर कोई प्रावधान भी नहीं था, कोई कानून भी नहीं था। और इस पर ध्यान जो है जब नेताओं के गए, जब इसे गया तो इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोचा और एक मास्टर स्ट्रोक बिल लेकर आए जिसका विरोध विपक्ष कर रही है। जैसा कि हमने राहुल गांधी का बयान सुना है, कांग्रेस के अन्य नेता भी इसी तरीके का बयान दे रहे हैं और इस बिल को तानाशाह ही बता रही है। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस बिल को जो है गलत ठहराया था और कहा था कि ये तो अपनी मनमर्जी से जो है लोकतंत्र से चुने हुए, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए किसी भी नेता को, किसी भी मंत्री को, मुख्यमंत्री को जो है ये हटाने का काम करेंगे। तो साफ तौर पर जो कांग्रेस है वो इस बिल का विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी है, आप कह सकते हैं कांग्रेस है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, सभी जो है इसका विरोध कर रहे हैं। वही बीजेपी और आप कह सकते हैं कांग्रेस के स्पेसिफिक एक नेता शशि थरूर इस बिल को सही ठहरा रहे, कह रहे हैं कि अगर कोई गलत करेगा तो सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुने। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।